Good morning students. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Students, today we will discuss about very important topic, that is quadrilateral. So let us define what is quadrilateral. Quadrilateral. A four-sided polygon is called a quadrilateral. This is quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD has 1. 4 sides AB, BC, CD, DA. 2. 4 angles, angle ABC, angle BCD, angle CDA and angle DAB. 3. 4 vertices A, B, C and D. 4. 2 diagonals AC and BD. In quadrilateral ABCD, AB and BC are called adjacent sides as they are adjacent to each other. AD and BC are called opposite sides as they are opposite to each other. The other pairs of adjacent sides are line segments BC and CD, CD and DA, DA and AB. The other opposite side is line segment DC and AB. Similarly, pair of adjacent angles are BAD and ADC, ADC and DCB, DCB and CBA, CBA and BAD. Pair of opposite angles are ADC and ABC, and DCB and DAB. As in the case of triangle, the region inside the quadrilateral is called the interior of the quadrilateral, and the region outside the quadrilateral is called the exterior of the quadrilateral. Hence, all the points lying on the quadrilateral and inside the quadrilateral form quadrilateral region. Here we can see that since the points P, O and R are lying in the interior region, so these are the interior points. Similarly, the points M and L lie in the exterior region of the quadrilateral. So these are exterior points of the quadrilateral ABCD. Circle. Students, what we have learned? Yes, we have learned about the quadrilateral. What is quadrilateral? A four-sided closed plane figure is called quadrilateral. बच्चे क्लोज्ड प्लेन फिगर जिसको आप एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी क्लोज्ड फिगर, और उसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए? ओनली 4 साइड्स. ओके, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. जनरली मीनिंग ऑफ क्वाड्री इज 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स. तो 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, 4-sided closed figure is called quadrilateral. तो here it is example ABCD is a quadrilateral. Okay, क्वाड्रिलेटरल की शॉर्ट फॉर्म क्वाड भी हम इसको कह सकते हैं, QUAD, क्वाड. यस स्टूडेंट, नाउ देयर आर 4 साइड्स. यस, टेल मी द नेम ऑफ 4 साइड्स. AB, दिस इज BC, CD and DA. Okay, 4 sides are there. After that 4 vertices are there. क्वाड्रिलेटरल में कितने vertices होते हैं? 4 vertices. Which one? A vertex, B vertex, C vertex and D vertex. Okay, तो प्लूरल फॉर्म में there are 4 vertices A, B, C, D. 4 vertices. Okay, how many angles are there? In quadrilateral there are 4 angles, 1, 2, 3 and 4. So 4 angles are there, student. Yes, name them. Angle A, angle B, angle C, angle D. Okay, 4 angles are there. You can also name them in other ways. Angle A को आप क्या भी लिख सकते हैं? Angle DAB या angle BAD. Okay. Yes. After that, what do you mean by adjacent sides? Student, adjacent sides क्या होते हैं? देखिए 4 sides हैं. अगर मैं आपसे adjacent sides की बात पूछूं तो क्या होगा? तो आपने पढ़ा है अभी adjacent side क्या होती है? This and this. These 2 sides are adjacent sides. This and this. These 2 sides are adjacent side. This and this. These 2 sides are adjacent. This and this. It means ऐसी 2 sides जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो.
इन दोनों साइड्स में देखिए ये रहा कॉमन वर्टेक्स, ओके। इन दोनों साइड में देखिए इनका एंड पॉइंट कॉमन वर्टेक्स सेम है, तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड वो साइड्स होती है जिन टू साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है या कॉमन वर्टेक्स होता है। तो आप लिखेंगे जैसे AB, AD आर एडजेसेंट साइड। तो ऐसे आप कई सारी फोर्स दे सकते हैं, दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस, ओके। व्हाट अबाउट एडजेसेंट एंगल्स? अब मैं आपसे एडजेसेंट एंगल्स की बात पूछूं तो वही इन साइड के ऊपर ये जो दो एंगल है स्टूडेंट, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स। दीज मतलब ऐसे टू एंगल्स जिनकी एक कॉमन साइड हो, जिनकी एक कॉमन, देखिए इसकी भी यही साइड है, इसकी भी यही साइड है, तो एक ही साइड के ऊपर बने दो एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल। ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, ओके। व्हाट इज अपोजिट एंगल? अपोजिट होते हैं देखिए आमने सामने वाले, दिस और दिस अपोजिट एंगल, दिस और दिस अपोजिट एंगल, ओके। ये एडजेसेंट होंगे, ये एडजेसेंट होंगे, ये एडजेसेंट होंगे, ओके। बट आमने सामने से क्रॉस, ये दैट इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। ये भी क्या है? अपोजिट एंगल, ओके स्टूडेंट। आफ्टर दैट व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स करा था, तो व्हाट आर अपोजिट साइड्स? तो देखिए दिस और दिस एडजेसेंट साइड थी, बट इसके सामने जो साइड है, ये जो दो साइड है आमने सामने, ये क्या कहलाएंगी? ऑपोजिट साइड्स। क्या कहलाएंगी? ऑपोजिट मीन्स AB और CD क्या है? ऑपोजिट साइड। या फिर इन दोनों की बात कीजिए, ये दोनों भी क्या है? आमने सामने ऑपोजिट साइड। ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट, बट ये और ये क्या होंगी? ऑपोजिट, ओके। एंड व्हाट अबाउट डायगोनल्स? अगर मैं ये और ये क्या थे? ऑपोजिट वर्टेक्स थे। क्या थे? ऑपोजिट वर्टेक्स। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या बन गया? डायगोनल। और ये भी क्या है? ऑपोजिट वर्टेक्स। तो अगर मैं इनको मिला दूं तो ये क्या बन गया? डायगोनल। तो देयर आर टू डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से हैं टू डायगोनल्स? एक तो है AC और एक है BD, ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने के बाद, ओके। एंड वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट बनाती हूँ बाहर, तो हम बोलेंगे दिस इज इन द एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का बाहरी पोर्शन है ये सारा, और ये अंदर जितना भी है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। और अगर आप इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड, या DCAB ये बाउंड्री पे है, तो दैट इज ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ओके। और अगर इंटीरियर पोर्शन को और बाउंड्री को मिला दिया जाए, द इंटीरियर पोर्शन टुगेदर विद द बाउंड्री और टुगेदर विद द क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल रीजन। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल रीजन? इंटीरियर पोर्शन प्लस बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल रीजन। Student, let us start our exercise 5.5, that is first question. Two sides of a quadrilateral are said to be opposite. किसी भी क्वाड की टू साइड्स को ऑपोजिट साइड्स कब कहेंगे? इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, इफ दे आर एडजेसेंट साइड्स, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड एंड नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट आप ऑपोजिट साइड्स किनको कहेंगे? जो एडजेसेंट नहीं होती। टू ही केस है, या तो वो साइड्स एडजेसेंट होंगी साथ साथ वाली, या फिर वो ऑपोजिट होंगी आमने सामने वाली। तो ऑप्शन है ऑपोजिट साइड्स हम उनको कहेंगे इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड्स, ओके, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, अ पॉइंट O इज इनसाइड द ट्रायंगल ABC। देखिए एक पॉइंट है इस ट्रायंगल में O पॉइंट इज देयर ABC में। तो कहता है कि इन हाउ मैनी, और आपने इनको ज्वाइन कर दिया ABC वर्टिसेस से, कहता है इन हाउ मैनी ट्राइंगल विद द ट्राइंगल ABC बी डिवाइडेड। तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है स्टूडेंट ABC, तो ये कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है? तो देखिए 3 ट्राइंगल्स में, एक ABO, एक AOC और एक BOC। इन 3 ट्राइंगल्स में ये बड़ा ट्राइंगल डिवाइड हो चुका है। कब? आफ्टर मार्किंग अ पॉइंट O, ओके। तो ऑप्शन C इज करेक्ट, 3 ट्राइंगल्स। Yes, question second, take a point O inside a pentagon. Student, what is pentagon? Pentagon is a closed figure that is made up of 5 sides. ठीक है, तो आपको 5 साइड का एक क्लोज फिगर बनाना है, ABCDE। एक पॉइंट लेना है O inside it, इसके अंदर ज्वाइन द पॉइंट O विद ऑल वर्टिसेस, और इस O पॉइंट को सभी वर्टिसेस से आपको ज्वाइन कर देना है।
इन हाउ मैनी ट्राइंगल्स विल द पेंटागन डिवाइडेड। तो देखिए पेंटागन कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है, और नेम दैम, और उन ट्राइंगल्स का नेम लिखिए। यस स्टूडेंट, हेयर इज अ पेंटागन ABCDE। ओके, जो नाम उसने कहा है वही लेना है। बीच में हमने एक O पॉइंट लिया देखिए, और उसने कहा है इस O पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सभी वर्टिसेस से, तो हमने ज्वाइन कर दिया। फिर आगे पूछा है कि ये पेंटागन कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है। तो देखिए 1 ट्राइंगल, 2, 3, 4 और 5। तो कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है स्टूडेंट? तो 5 ट्राइंगल्स में। तो आप लिखेंगे 5 ट्राइंगल्स, और उसके बाद उसने कहा नेम दैम, उन ट्राइंगल्स का नेम भी लिखिए। तो आप इस तरह से लिखेंगे 5 ट्राइंगल्स। फर्स्ट है ट्राइंगल AOB, ओके, एक ये ट्राइंगल, फिर इस ट्राइंगल का नेम ट्राइंगल BOC। इस तरह से करके आप 5 की 5 ट्राइंगल्स का नेम देंगे। ओके, यस, क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 4 साइड की क्लोज फिगर। नेम द साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स एंड डायगनल्स। तो बच्चे उसका जैसे आपने ये 4th क्वेश्चन देखिए, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसकी सभी साइड्स का नेम लिखना है, वर्टिसेस का लिखना है, एंगल्स कौन कौन से और डायगनल्स कौन कौन से है, इनके नेम लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, नोटबुक में एक अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसको नेम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, PQRS ABCD कुछ भी आप दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नेमिंग आप उनकी साइड, वर्टिसेस, एंगल और डायगनल लिखेंगे। ओके, यस, क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके, द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब एडजेसेंट साइड्स के पेयर लिखो इस फिगर को देखते हुए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, सॉरी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स का पेयर बताइए। तो मैंने एडजेसेंट साइड आपको बताई थी, साइड वाली, साथ साथ वाली साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो देखिए ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, AD और DC। तो आप लिख सकते हैं AD, DC, फर्स्ट पेयर हो गया साइड, एडजेसेंट साइड का। सेकेंड आप DC और CB, ओके, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स C है। इस तरह से करके आप 4 की 4 खुद लिखेंगे। फिर कहता है द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, अभी एडजेसेंट बताई थी, अब ऑपोजिट। तो स्टूडेंट देखिए ऑपोजिट साइड आमने सामने वाली, ये भी है और ये भी है। तो एक पेयर मैं आपको बताती हूँ CD और AB। ओके, आप DC भी कह सकते हैं, CD भी कह सकते हैं। CD AB एक पेयर मैंने बता दिया। एक ऑपोजिट साइड का पेयर ये होगा, ये वाली और ये वाली, इसका आप नेम खुद लिखेंगे। थर्ड पार्ट, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, साथ साथ वाले एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ए की साइड के ऊपर जो 2 एंगल होते हैं, ये 2 भी हो सकते 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 हैं। तो एक पेयर मैं आपको लिख के दे रही हूँ। एक पेयर एडजेसेंट एंगल्स का क्या हो जाएगा? एंगल D, एंगल C। सेकेंड पेयर आप खुद लिखेंगे। ओके, एक पेयर हो गया एंगल D और एंगल C। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ही साइड के ऊपर हैं दोनों एंगल्स। फोर्थ पार्ट, द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने वाले, देखिए दिस एंड दिस ये ऑपोजिट हैं, दिस एंड दिस ये ऑपोजिट हैं। तो एक पेयर मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ऑपोजिट एंगल में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A, एंगल C। सेकेंड आप खुद बताएंगे, मैंने आपको बताया ये और ये वाला आप खुद लिखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज watch the video carefully, okay, and after that complete your exercise 5.5 in your fair notebook. If any doubt and inquiry, then ask from me.